So I'll just quickly narrate the second part of the bail provision, which will be confined to cancellation of bail and the other circumstances regarding the special law under which the bail is granted. So for cancellation of bail under section 437 subsection 5 and section 439 subsection 2 of the CRPC, the grounds for cancellation are identical. I'll give you a few illustrations regarding what are the grounds. The first ground is where the accused misuses his liberty by indulging into a similar criminal activity of which he was accused of. The second ground is that he interferes with the course of investigation. He attempts to tamper he attempts to tamper with evidence or witnesses. He threatens witnesses or indulges in a similar criminal activity which would hamper smooth investigation. Or there is a likelihood of him fleeing to another country, or attempts to make himself scarce or underground, or being unavailable to the investigative agency, or attempts to place himself beyond the reach of the surety. These are some of the few illustrative grounds. An extra grounds could be that the accused violates the conditions of bail on which he was released. That also can be additional ground. So the grounds are illustrative, they are not exhaustive. They depend on the facts and circumstances of the case. However, the issue of cancellation of bail is only done after keeping in mind the supervening circumstances. See, when you move to a higher forum or to the same court and approach them for cancellation of bail, you are actually saying that at the time when the bail was granted, the order was valid. You are not questioning the order for grant of bail. You are saying actually that in because of the supervening circumstances, the accused must not be free anymore, and he should be again confined to custody because he has abused the freedom that has been granted by the court on the any of the grounds that I have so illustrated, or or because he has violated the condition of the bail. But these materials are to be a bit strictly construed because the issue here again will be related to his fundamental right and the criminal jurisprudence doctrine also, that the accused is presumed innocent until proven guilty. So in that situation, the prosecution has to place sufficient material which convinces the court that yes, the accused has misused his liberty, and the supervening circumstances, it could be any one of the any one of those that I illustrated, or it could be the one which are peculiar to the fact and circumstances of the case, or it could be that he has violated his conditions on which the bail was granted. Let us suppose accused who has been granted bail now started threatening the witnesses. On this ground, the bail can be cancelled. All right, but whenever you are writing about the cancellation of bail, you must learn to link it with Article 21 specifically and the criminal law doctrine that the accused is presumed innocent until proven guilty. And whenever you are arguing the case from the defense perspective, you have to actually bring the court to focus on this point, that the fundamental right of the accused will be violated if his bail is cancelled on flimsy grounds. The grounds has to be substantially shown by the prosecution that yes, the supervening circumstances are enough for the court to consider that yes, the ground for cancellation of bail has been made by the subsequent conduct of the accused after the release of bail. This is why the Supreme Court in Daulat Ram versus State of Haryana said that very cogent and overwhelming circumstances are necessary for an order directing the cancellation of bail. Generally speaking, grounds for cancellation of bail are, for the sake of illustration, interference or attempt to interfere with the due course of administration of justice. It is a very wide ground.
or evasion or attempt to evade the due course of justice or abuse of the concession granted to the accused in any manner. The satisfaction of the court on the basis of material placed on record or the possibility of the accused absconding is yet another reason for cancellation of bail. However, bail once granted should not be cancelled in a mechanical manner without considering whether any supervening circumstances have rendered it no longer conducted to a fair trial to allow the accused to retain his freedom by enjoying the concession of bail during trial. These principles are mandatory for the courts to follow, and they cannot be ignored by the lower courts. If they do, you can obviously approach the higher forum to set aside the order of cancellation of bail if it has been done in a mechanical manner. All right. So further issue arises that what is the burden of proof? What is the level of burden of proof that the prosecution has to displace before court that the accused has misused his liberty? Should the prosecution use the criminal law burden of proof, which is used at the time of trial, that the accused should be proved beyond reasonable doubt to be guilty? No. The burden of proof in this case will be of that of a civil case, that is of preponderance of probability. That is it. No higher standard of proof is needed by the prosecution for cancellation of bail. However, bail should never be cancelled in a mechanical manner. You can quote the case of Aslam Baba Desai versus State of Maharashtra. It is a locus classicus that you can always quote. There are other locus classicus cases also that you will be able to quote. I'll just narrate them. This is Gurcharan Singh and others versus State. That is one. And I'll just illustrate which are the further few case laws which you can quote in the exam or use in your arguments. So remember that grounds for cancellation and even grounds for grant of bail on merits under 439 437 are substantially the same. All right. So do not be confused that there needs to be separate ground for that. Now, in Gurcharan Singh also, Supreme Court then again reiterated the same points. Supreme Court said कि at the time of grant of bail, overriding considerations in granting bail to which we adverted to earlier are common in both cases under 437 and 439 of the CRPC, where the nature of gravity of the offences and every other thing is considered. We have already discussed and elaborated on that. But this case establishes a very leading point that must be borne in mind. That is that the Court of Session cannot cancel a bail which has been granted by the High Court. Always remember that. A Court of Session will not be able to cancel a bail that has been granted by the High Court, even though both have the concurrent jurisdiction to grant a bail under 439. But the committee of the judicial institution, for the committee of the judicial institution and the judicial discipline mandates that the Court of Session not to take such recourse. All right. So I'll reiterate that a Court of Session cannot cancel a bail which has been granted by the High Court, but there is one exceptional circumstance. What is that? If there are supervening circumstances that appear during the progress of trial after an accused person has been admitted to bail by the High Court, in those situations, the material place is sufficient, then Court of Session can cancel such bail. General rule is that he cannot. In fact, if you go even practically, if you go into the trial courts, then you will find that the Court of Session will ordinarily not dare to cancel a bail that is granted by the High Court. In fact, rare instances, if any, might have occurred, but generally 99.99% of the cases you will never see Court of Session cancelling the bail which has been granted by High Court. All right. But if a Court of Session has admitted an accused person to bail, the state has two options. Let us suppose if Court of Session has granted bail to an accused person, what will happen in that scenario? The first scenario we dealt with, where the Court of Session cannot cancel a bail that the High Court has granted unless there are special circumstances which have arisen after the grant of bail during the course of trial
In that, only in that exceptional scenario, the court of session can cancel a bail by high court. Otherwise, he cannot. General rule is he cannot. That is a matter of judicial discipline. But if, let's suppose, session judge has granted bail to the high court, oh sorry, if suppose the sessions judge has granted bail to an accused, what will you do in that situation? The state has two options in this case. It may either move to the sessions judge if new circumstances have arisen which were not earlier known to the state and necessarily therefore to that court. Now the supervening circumstances have appeared, the one that I will illustrate in the start of the lecture, that he is misusing the conditions of bail, he's abusing his liberty, he's threatening the witnesses, etc. Supervening circumstances have appeared, and in that scenario, the state or the prosecution has the option available that it can move to the court, sessions court, which has granted the bail, for the order of cancellation. State in this scenario can also approach the high court, because high court is a superior court, and it can also approach the high court for cancellation of bail. But where in the scenario where the state is aggrieved by the order of the session judge for granting bail, if let's suppose the state believes that bail ought to not have been granted at all, that the session judge wrongly have granted bail to the accused, that the order is not valid in law, in that situation, because they are not, the state is not saying that because of the supervening circumstances the bail should be cancelled. The state is actually saying that the order of bail ought not to have been made at all. In that scenario, what will the state do? The state cannot approach the session judge, because the grounds of cancellation of bail will be considered on the basis of supervening circumstances. I have also told you in the yesterday's lecture, and the Amarmani Tripathi case is also a leading authority on that, apart from this case, Gurcharan Singh versus State. So I'll say, in that scenario, let's suppose, where the state is actually aggrieved by the order of grant of bail, it is not saying that cancel bail because the accused is misusing his freedom. It is actually saying that bail ought not to have been granted at all. In that situation, it cannot approach the session judge. It has to approach the high court in this scenario, because here it is questioning the grant of bail itself, and high court, being the superior court in this scenario, is competent to set aside such bail order. All right. So in that regard, the Supreme Court says, when however the state is aggrieved by the order of the session judge granting bail and no new circumstances have arisen except those which have already existed, it is futile for the state to move to sessions judge again, and it is competent in law to move to the high court for cancellation of bail. This position follows from subordinate position of court of session in comparison to the high court. So always keep this in mind, that when you are going for cancellation of bail, in essence, you are talking about the supervening circumstances. You are not saying that the bail should be cancelled because the order of bail ought not to have been made at all. Although you will approach under 439b, 439 subsection 2 only, but rather you are actually saying that due to supervening circumstances the bail has to be cancelled. Then you have to place the material on record that how, on the basis of supervening circumstances, the bail should be cancelled, and only after considering the material on record and on the basis of preponderance of probability, the court will come to a conclusion that whether the bail has to be cancelled or not, and it will judge those parameters that I have just illustrated at the start of the lecture, whether the accused is misusing his liberty, whether he's trying to abscond, etc., etc., hampering investigation, etc. So the material has to be placed, then the material will be judged on the basis of preponderance of probability. But when you are saying that the grant of bail ought not to have been made at all, that order is perverse or it's based on no material, and you want to move to a higher forum, that thing is different. That thing is very different. In that scenario, the supervening circumstances will not be
considered. In that scenario, the initial circumstances will be taken into account. It will be seen whether the order of the judge who granted bail was perverse or not, whether it was based on cogent reasons for the grant of bail. In that scenario, the superior forum will see the grounds on which the bail ought to have been granted and see if those grounds are satisfied, or whether the order suffers from a non application of mind or not. So, the grounds for cancellation of bail and the grounds for actually approaching the superior court on the ground that appeal from bail, that I want to, that the order of grant of bail ought not to have been made at all. In that scenario, both of the things are different, and the way to prove both of the things are also different, and grounds taken in support of these pleas are also different. All right, so always keep this difference in mind. In yesterday's case, Aman Mani Tripathi case that I gave all of you, in that case also it was clarified by the Supreme Court कि generally there is a difference between appeal from bail and moving to a superior forum for cancellation of bail. On the latter, you have to show your supervening circumstances. But in the former, in the scenario where you are appealing from the grant of bail itself and saying that the order of bail ought not to have been made at all, you are actually saying that the order is perverse of the lower court which has granted the bail, and it is based on no material. Then you have to show that the guidelines on the grant of bail, that it has been violated. Let us suppose that the charge was very severe, the judge has not considered those charges, severity of the sentence, and the possibility of the accused, or the order of grant of bail is made on no material at all that things, or has been made by the judge on irrelevant considerations. All those things have to be shown. Supreme Court, just for the sake of a clarification, included some part where long period has gone by, and only in that scenario supervening circumstances can also be taken into account, but generally they will not be taken into account because the ground of both of the things are different. So always keep this difference in mind. It is very necessary for you to see that what are the grounds on which the bails are granted. First you will see those grounds, then you will see what are the grounds on which bail is cancelled. You will find many similarities between them, but the processes and the way they are questioned, the way they are proved, the way they are placed before court, and the way they are dealt by court are very different. So keep this difference in mind. So in state Delhi administration versus Sanjay Gandhi, Supreme Court itself said that the cancellation of bail stands on different footing from the rejection of bail. The grounds of rejection of bail are different. The grounds of cancellation of bail are different. And again, it says it has illustrated a few points. If the accused made an attempt to flee from justice, tried to tamper with evidence, influence witness, hamper investigation, etc. Then says, Supreme Court elaborates that the burden which rests on the state in an application for cancellation of bail is of a limited nature. All that is necessary for the state to show in support of its plea that the bail may be cancelled is that there is reasonable apprehension of tampering with evidence, that the accused is interfering with the course of justice. It is not necessary to prove the fact of tampering with mathematical certainty, nor indeed beyond reasonable doubt. The test is to be adopted in such matter is that of a reasonable apprehension. So what test will you take? The test will to be adopted is that of a reasonable apprehension. But though the guilt of the accused in cases which involve the assessment of these facts has to be established beyond doubt during the trial, if you have to prove an offense against an accused person, you have to establish it beyond doubt. That is true. But it doesn't mean that in all of the proceedings of the CRPC or criminal trial, uh, every single stage where the facts needs to be proved will require
a fact to be proved beyond doubt. The Supreme Court clarified in this case that the proof of fact when you apply for cancellation of bail can be proved by preponderance of probabilities, as in civil cases, and this concept is not foreign to criminal jurisprudence. The prosecution does not need to establish its case beyond reasonable doubt in this case. The same standard of proof as in civil cases will apply where you apply for cancellation of bail, but the material should be enough. The prosecution in this scenario can therefore apply for cancellation of bail by showing on preponderance of probability that the accused has attempted to tamper with evidence or tampered or influence or tried to influence witnesses, depending on scenario. So now that I've dealt with general guidelines, see, your state versus Sanjay Gandhi is a locus classicus as well. So I would advise you mention these cases in judicial exam. State versus Sanjay Gandhi and Gurcharan Singh versus State. Apart from all of the cases that I've mentioned, Aslam Baba versus State of Maharashtra, these type of cases. So now I'll deal with the nuances that are there, the situations that may arise. Can bail be grounded on the can bail be granted on the ground of compromise? Can generally bail be granted on a ground of compromise? The Supreme Court categorically said that general rule is that bail ought not to be granted merely on the ground of compromise. So in Biman Chatterjee versus Sanchita Chatterjee, Supreme Court said what court has to bear in mind while granting bail is what is provided in for under section 437 of the code. In our opinion, having granted bail under the said provision of law, it is not open to the trial court or the high court to cancel the same on the grounds which are alien to the mode of cancellation of bail. Supreme Court said that the grant of bail under Criminal Procedure Code is governed by the procedure under Chapter 33 of the CRPC, and the provision therein does not contemplate either granting the bail on the basis of assurance of compromise or cancelling the bail for the violation of the term of compromise. So let us suppose there are two warring parties inside a courtroom. In the middle of a trial, they agree for a compromise. So they apply to the judge and say that we want to compromise, and these are the terms of compromise. And let us suppose that the offense is compoundable as well. So what happens in that scenario? That let us suppose one party violates the terms of the compromise that both party has agreed. Now the party who is aggrieved by the order of violation, by such violation of the by the opposite party, it approaches the court and says that, see, you granted him bail on this basis, on the basis of our compromise. Now he has violated the conditions of the compromise. So if the court cancels such bail, then court will be acting not according to law. In this scenario, court is not acting according to law, and also the grant of bail itself is not in accordance with law. That is what Supreme Court wanted to clarify, that when you are giving bail, when if you are a court and you're giving bail, you have to grant bail on the parameters as the law of bail mandates. Now you have to consider the merits of the case, you have to consider liberty, criminal jurisprudence, the first principle that accused is presumed innocent until proven innocent, and all the ex- illustrative points that I just gave you about the grant of bail, possibility of fleeing his community roots, etc., etc. The possibility of him tampering with evidence, investigation. So the court said that general rule is that the subordinate courts or any court for that matter ought not to grant bail on the basis of a compromise. ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे बेल ग्रांट कर रहे हैं, तो बेल लॉ को ले डाउन करने का फायदा ही क्या हुआ? तो कोर्ट ने इस केस में सिंपल से
4-5 लाइन में ये बात क्लियर कर दी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे बेल नहीं देंगे, ना आप बेल कैंसिल कर सकते हैं फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। बेल का ग्रांट उन्हीं पॉइंट से डील होगा जैसा कि लॉ में हेल्ड है, चैप्टर 33 के प्रिंसिपल्स और जो केस लॉ के जो प्रिंसिपल्स जो इलस्ट्रेटिव इतने सारे दिए वो सर उनके बेसिस पे डील होगा। इस बेसिस पे नहीं डील होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ का वायलेशन हुआ। बेल की कंडीशंस का तो वायलेशन होना चाहिए, या तो जो जनरल गाइडलाइंस हैं कोर्ट्स की on which on the basis of which supervening circumstances have occurred are grave enough for the court to think that the accused has misused his liberty. In that scenario, your bail can be cancelled. तो जब ग्रांट करेंगे तो आप वो पॉइंट्स देखेंगे जिन पे बेल ग्रांट होनी चाहिए, मेरिट आप ऐसे डिटरमाइन करेंगे, और जब आप कैंसिल करेंगे तो आप वो पॉइंट्स देखेंगे जिस पे बेल कैंसिल होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस। कॉम्प्रोमाइज बाय बोथ पार्टीज शुड नेवर बी द बेसिस ऑफ ग्रांट और कैंसिलेशन ऑफ बेल। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये केस इस बात पे इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे हो सकता है या नहीं। बेल इज टू बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट and the bail is to be cancelled on the basis of supervenient circumstances if they are sufficiently proved by the prosecution. All right, so keep this thing in mind. अब एक चीज़ बतानी है कि क्या पर्सनल कमेंट बेल ऑर्डर में अलाउ होने चाहिए। तो देखिए, इस पर कोई बाकायदा लॉ नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर इन द केस ऑफ कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन दैट सिनेरियो जस्टिस प्रतिभा रानी एक्चुअली her order seemed way too emotional and bail order, and it showed that the high court that the high court actually thinks that Kanhaiya Kumar one way or the other was involved in the incidents, because the high court actually mentions in the bail order that that inside the comfort of the university campus you people are allowed to shout these slogans while our army is guarding at the borders, and only because of that you are able to enjoy that comfort. तो वो सारी बातें जो हाई कोर्ट ने बोली थी, it actually showed a hint of prejudice, a hint of prejudice. तो I will not cast aspersions on the judge, but the bail order was severely criticized by many of the jurors कि it has shown a bit of the bias, and it shows that the case of a person might have been prejudged even though the bail was granted for the period of 6 months. तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जनरली जो पर्सनल कमेंट्स है ना, जजेस को बचना चाहिए उसमें। जजेस को बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए कि किन बातों पे आप बेल ग्रांट करेंगे, और यहाँ पे जो कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी डिटेल में इंक्वायर किया कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आराम से बैठते हैं और आराम से बैठ के अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर लगाते हैं और एंटी नेशनल स्लोगन देते हैं, और वो इतना फ्रीडम इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी आर्मी बॉर्डर्स गार्ड कर रही है। सो इट एक्चुअली शोज दैट one way or the other the court actually thinks that Kanhaiya Kumar was involved in it, even though the evidence at the trial might appear contrary to it. तो बेल ऑर्डर में ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ें तो आप दो कंक्लूजन बना सकते हैं, बट द जज इन हर लैंग्वेज शुड बी मॉडेस्ट, थोड़ा मॉडेस्ट रहना चाहिए और थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि पर्सनल कमेंट्स ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे हिंट ऑफ बायस ना दिखे। क्योंकि अगर सुपीरियर कोर्ट कुछ ऐसा बोल देगा तो वो जो लोअर कोर्ट जो ट्रायल जज है उसके दिमाग पे असर डालता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच ए सिचुएशन, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन मेरिट्स और गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड शुड बी अवॉइडेड। तो पर्सनल कमेंट्स बेल ऑर्डर में जनरली अवॉइड होने चाहिए। अब कुछ सवाल ये उठता है कि कस्टडी जो होगी, कस्टडी से पहले कंडीशन पे आता हूँ कि कंडीशंस जो होती हैं जो बेल में लगाई जाती हैं वो कैसी हो सकती है, कोई भी हो सकती हैं। तो आंसर है कि हालांकि कंडीशन बहुत ही वाइड टर्म है, कोर्ट चाहे तो कोई भी रीजनेबल कंडीशन लगा सकता है श्योरिटी की या बाकी चीज़ों की, पर वो
इतनी ऐसी कंडीशन कोई नहीं लगा सकता जो बेल का पर्पस से डिफीट कर दे। जैसे कि लेट अस सपोज कि आपको श्योरिटी के लिए बोले, और श्योरिटी के लिए बोलना है कि 1-1 करोड़ की श्योरिटी लेके आओ। तो इफ द पर्सन इज नॉट इन अ सिचुएशन वेयर ही कैन अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव श्योरिटी, ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती जो ग्रांट ऑफ बेल के पर्पस को ही डिफीट करते हैं। लेट अस सपोज कि अक्यूज्ड का केस पूरी तरीके से मेरिटोरियस है, पर मैजिस्ट्रेट इज हैंड इन ग्लव विद द प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करना चाहता है। तो हालांकि वो जानता है कि वो मेरिट पे तो अक्यूज्ड का केस में उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, उसने सारे पैरामीटर्स भी सेटिस्फाई कर दिए हैं बेल, जिस पे बेल ग्रांट होनी चाहिए, पर उसके बाद भी ही डजंट वांट टू गिव हिम बेल। तो वो ऐसी कंडीशन लगा देता है कि वो बेल जो श्योरिटीज़ है वो ला ही ना पाए या मनी ना अफोर्ड कर पाए। तो वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। द मनी कैन नॉट बी एक्सेसिव, द श्योरिटी अमाउंट कैन नॉट बी एक्सेसिव, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए विच tantamounts टू डिफीटिंग द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल इटसेल्फ। मान लीजिए बेल पे क्या ये कंडीशन लिख सकता है कि हाँ आप अक्यूज हो, आप जाके कन्फेशन करो पुलिस वाले के सामने कि आपने क्राइम किया या नहीं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। सो नो सच कंडीशन कैन बी मेड दैट इज इन वायलेशन ऑफ अ लॉ। दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर क्या है? आप जो भी कंडीशन लगाएंगे इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी ओप्रेसिव। अब कुछ चीज़ें आती हैं जो प्राइवेसी की बेसिस पे होते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुझे इंसिडेंस याद है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बेल ऑर्डर के करते वक्त आधार लिंकेज की बात की थी कि अपना आधार का डेटा दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट में वो पॉइंट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा था कि डू नॉट इंसिस्ट ऑन आधार एट दैट टाइम। तो अभी तो वो क्लियर नहीं है कि मैकेनिकल मैनर में आप आधार का डेटा लें या नहीं लें, बट आई थिंक इन द व्यू ऑफ प्राइवेसी जजमेंट आधार डेटा शुड नॉट टोटली बी टेकन इन अ मैकेनिकल मैनर। कि मान लीजिए किसी पे माइनर सा चार्ज लग गया और उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आधार डेटा सबमिट करिए, सो दैट इज़ अ बिट ऑड थिंग। हाँ, सीवियर केसेस में जहाँ पे ऐसे डेटा की ज़रूरत हो, जहाँ पे ऑफेंस की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है और उस पर बेल दी जा रही है, तो ऐसे केसेस में लिया जा सकता है इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ के एस पुट्टास्वामी, क्योंकि उसके नुआंसेस पूरी तरीके से ये बात क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किन केसेस में लिया जा सकता है, किन केसेस में नहीं लिया जा सकता है। पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला था कि डू नॉट इंसिस्ट ऑन इट, मत इंसिस्ट करिए उस पर। उसमें एक स्पेशल लॉ का भी मैटर था। तो जनरली अभी ये पोजीशन है कि जनरल रूल इज दैट द आधार डेटा शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। ये जनरल रूल है, पर एक्सेप्शनल सिनेरियोज में ये मांगा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लॉ कभी भी अगर उसको आपने एयर टाइट चेम्बर में डालने की कोशिश की तो वो आज नहीं कल चेंज कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। इसका प्राइमरी एग्जांपल आपको दिखेगा वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल में। व्हेन विल कम टू एंटिसिपेटरी बेल देन आई विल शो यू कि कोई भी ऐसी अप्रोच जो लॉ को फैक्ट के हिसाब से नहीं रहने देती है बट रादर ट्राइज टू कंपार्टमेंटलाइज इट, उसे एयर टाइट चेम्बर में बंद करने की कोशिश करेगी, ऐसी सिचुएशन में लॉ इज ऑलवेज चेंज्ड। क्योंकि देखिए, क्रिमिनल लॉ का पर्पस है टू एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, और अगर कोई ऐसा रूल बना दिया गया है विच एक्ट्स टू डिफीट जस्टिस, तो वो लॉ स्टैंड होने नहीं दिया जा सकता। एंटिसिपेटरी बेल पे कई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स से which have been dealt with recently. When we'll come to anticipatory bail, I'll deal with that in detail. So अभी मैं डील करता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस और लगा सकते हैं। अब आप एज लेट अस सपोज यूर अ कोर्ट, तो क्या आप ये कंडीशन लगा सकते हो इन अ ग्रांट ऑफ बेल ऑर्डर कि जाओ आप 50 ट्री प्लांट करो? हाँ, ये लगा सकते हैं आप। दिस इज़ अ वेरी वैलिड कंडीशन। आप सोशल सर्विस के लिए कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। आप बोलें कि जाइए आप यू विल एक्चुअली क्लीन द रोड, ये सारी आप बातें सोशल सर्विस के लिए कर सकते हैं। ये कंडीशन आप लगा सकते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। प्लांटिंग ऑफ ट्री स्कीम की कंडीशन लगा सकते हैं। ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं वही बता रहा हूँ, तो उन्हीं का रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने जिनको ईव टीज जो उन्होंने ईव टीजिंग के मैटर में वो कस्टडी में लिए गए थे, तो उनको जब रिलीज़ किया था तो बोला था कि वी विल
the condition of bail is that you will clean the road and apologize daily to the woman that was involved. तो they agreed to that condition, और वो condition क्या कहते हैं वो वैलिड मानी गई थी. It was considered a good condition. दूसरा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. एनवायरमेंटल लॉ का भी मैटर आ जाता है, एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट है. तो ऐसी अच्छी अच्छी कंडीशन जो सोशल सर्विस में जाए और इट विच एक्चुअली मेक समथिंग कंस्ट्रक्टिव, ये लगाई जा सकती हैं. पर ऐसी कंडीशन मत लगाइएगा विच कैन एक्चुअली डिफीट द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग बेल, कि आप क्या कहते हैं कि आप पुलिस को सरेंडर कर दीजिए, या बेल की कंडीशन ही ये होगी कि आफ्टर कि यू विल नॉट डिमांड बेल फ्रॉम अ हायर कोर्ट. आप कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो लॉ के विरुद्ध जाए, विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. स्टैट्यूट के खिलाफ आप कभी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते. आप कभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते विच आर ऑप्रेसिव इन नेचर, जो ऑपरेशन करे. कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते विच इज़ इन फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, और डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. पर हाँ, आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं जो सोशल सर्विस के फर्दरेंस में है, जो आप प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के लिए करते हो, और ये सारी बातें आप कन्विक्शन के लिए भी एट द टाइम डिटरमाइन कर सकते हो. तो ये फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पे होगा कि आप क्या कंडीशन लगाओ. पर जनरली क्या कंडीशन लगते हैं? जनरली ये कंडीशन लगती हैं एट द ग्रांट ऑफ बेल दैट द अक्यूज्ड shall not tamper with evidence, shall not influence witnesses, shall cooperate with the investigation, and he shall not leave the district with अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ, कि he shall not leave the district without informing the courts, without taking permission of the court. He will monthly or weekly inform the local SHO about his whereabouts. He will not change his address. और ऐसी ही जनरल कंडीशन लगती है, जनरली इन नेचर है. या तो पासपोर्ट विल बी इम्पाउंडेड, लेकिन पासपोर्ट को लेके भी अब एक जजमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डील विद इट राइट नाउ. पर पहले हम लोग इस इश्यू से डील करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अरेस्टेड नहीं है, लेट अस सपोज अ पर्सन इज़ नॉट अरेस्टेड, ही कम्स डायरेक्टली टू द कोर्ट. आप जज हैं, एक पर्सन आता है एंड डायरेक्टली सरेंडर्स. केस है, FIR है, चार्जशीट है, पर उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है. जो उसका लॉयर है वो अपने साथ अक्यूज्ड को लेके आया है. दैट पर्सन हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, बट ही कम्स टू योर कोर्ट एंड सबमिट्स टू योर एंड सरेंडर्स बिफोर यू. क्या आप ऐसे व्यक्ति को बेल पे रिलीज़ कर सकते हो? तो आपको मैंने अरेस्ट और कस्टडी में डिफरेंस बताया था. सो आई विल गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ कस्टडी टुडे, कि इन कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम कस्टडी की डेफिनेशन क्या दी गई है, कि it consists of detention or restraint of a person against his or her will, or of the exercise of control over another to confine the other person within the certain physical limits, or a restriction of the ability or freedom of movement. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में कस्टडी की क्या डेफिनेशन दी गई है? कस्टडी means the care and control of a thing or person. The keeping, guarding, care, watch, inspection, preservation or security of a thing, carrying with it an idea that the thing being within the immediate personal care and control of the person to whose custody it is subjected. Immediate charge and control, and not the final and absolute control of the ownership, implying the responsibility for protection and preservation of the thing in custody. Also the detainer of a man's person, मतलब मैन की फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल बाय द वर्च्यू ऑफ लॉफुल प्रोसेस और अथॉरिटी. तो हमारे लिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का लास्ट पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं दोनों को रेफर करके एक बात बोली कि टर्म कस्टडी विद इन द स्टैट्यूट कैन एक्चुअली मीन actual imprisonment or physical detention, or a mere power, legal or physical, of imprisoning or taking manual possession. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला. अब आप जानते हैं कस्टडी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. जब आप सरेंडर करते हैं कोर्ट के सामने, तो यू आर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स कंस्ट्रक्टिव कस्टडी. ऑलराइट. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सेज
कि such person can be granted bail. Such person can be granted bail. But what is the reasoning for grant of bail in this situation? I'll elaborate. When is a person in custody within the meaning of 439 CRPC? When he, so first situation is when either he's arrested by the investigating agency, or police or allied authority, or it's under the control of the court having been remanded by the judicial order, or having offered himself to the court's jurisdiction and submitted to its orders by physical presence. So when a person submits to the jurisdiction of the court by his physical presence and categorically declares that he submits to its jurisdiction, in those situations it is lawful for the judge to grant bail in that situation. All right. So, but again, the grant of bail will be decided on the basis of merits which have been given. It merely because the person has surrendered to the court's jurisdiction doesn't mean that they'll immediately be given bail. They can be given bail if otherwise the merits of the matter are sufficient to establish that yes, such person can be allowed to be released on bail. मैं तो इस पोजीशन से डील कर रहा था कि मान लीजिए कि उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उसने आपके सामने सरेंडर कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं या नहीं? तो निरंजन सिंह एंड अनदर वर्सेस प्रभाकर राजाराम खरोते वाले केस में ये पॉइंट डील हुआ था कि यस दे कैन, लेकिन इस पॉइंट में, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के ऑर्डर को अपहेल्ड किया, लेकिन एक चीज़ पाई कि ग्रांट ऑफ बेल मेरिटोरियस नहीं था. इस केस में क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर्स ने बेल के लिए अप्लाई किया था, वो लोग क्या कहते हैं अक्यूज थे इस केस में, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो सीधे व्हाट दे डिड कि rather than going to the magistrate who has refused their earlier bail order and without surrendering before the magistrate, they first obtained an order for stay to move to the sessions court. पहले तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे स्टे लिया to move to the sessions court, and the stay was granted by whom? The stay was granted by the magistrate itself, and the magistrate does not have the power to grant stay in the view of the bar under section 362 of the CRPC, which prohibits the review. एक बार आपने ऑर्डर ग्रांट कर दिया तो आप स्टे किस बात का कर रहे हैं? यू कैन नॉट डू सो. ओनली द सुपीरियर फोरम कैन ग्रांट द स्टे, नॉट द मैजिस्ट्रेट. So what by the virtue of this order, what happened that the magistrate's direction was wholly irregular, and it enabled the accused persons to circumvent the principle of 439 CRPC, and the subordinate magistrate actually helped these accused to surrender before the sessions court. And in this situation, sessions court acquired jurisdiction to consider the bail, and it actually granted a bail. While had the merit of the matter was considered, the accused police officers were not fit to be granted bail, because there was all probability that they would have tampered with evidence, they would have influenced witnesses, they could have tried to flee, because the fact of the case थे उस situation में ये था कि ये इनकाउंटर किलिंग का भी मैटर था, और इसमें ये था कि देयर इज़ ऑल प्रोबेबिलिटी कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली फ्राउंड अपॉन इट. तो इन्होंने जब सरेंडर किया सेशंस कोर्ट के सामने, तो हुआ क्या, द सुप्रीम कोर्ट सेड कि हालांकि सेशंस कोर्ट ने बेल दे दी, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि सेशंस कोर्ट के लिए ज़्यादा बेहतर होता कि इट वुड हैव रिफ्यूज्ड बेल and remanded the accused to custody, but in the circumstances of the reasons mentioned by it, exercised his jurisdiction in the favor of granting of bail. तो सेशन जज ने बेल ग्रांट कर दी इस केस में. द हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस ऐड की बेल पे, लेकिन बेल के ऑर्डर को डिमोलिश नहीं किया. तो क्योंकि हाई कोर्ट से भी मैटर अपहेल्ड हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब हमें भी इसको
डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट एक फाइंडिंग रिकॉर्ड, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की कि अगर सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट होते, अगर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को नहीं अपील किया होता तो वी वुड हैव डिमोलिश्ड दिस ऑर्डर फॉर बेल। बट उन्होंने कहा कि दो कोर्ट्स ने जब इस सेम ही एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन में इंटरफेयर नहीं किया तो हम क्यों करें, ये बात बोली। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया कि आप, उन्होंने आपके पास सरेंडर कर दिया तो आप बेल नहीं ग्रांट करते। आप बेल ग्रांट कर सकते हैं इफ अ पर्सन सरेंडर्स बिफोर जजमेंट, लेकिन आपको ग्रांट ऑफ बेल के लिए मेरिट्स ऑफ द मैटर कंसिडर करना है, जो सेशंस कोर्ट ने नहीं किए। जो मेरिट्स, जो ग्रांट ऑफ बेल के जो पैरामीटर्स हैं, उस पर पुलिस ऑफिसर्स का जो केस था वो फिट नहीं बैठ रहा था। देयर वाज ऑल प्रोबेबिलिटी दैट दे कुड हैव influence investigation, influence witnesses, tamper evidence, threaten the complainant, etc. etc. So पॉइंट, ये केस लॉ मैंने क्यों मेंशन किया, ये केस लॉ इस पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि अगर क्या बेल किसी ऐसे पर्सन को आप ग्रांट कर सकते हैं जो कोर्ट में सरेंडर करता है, तो आंसर है इसका येस। अच्छा, एक बात ये है कि मान लीजिए बेल एप्लीकेशन, यूर अ लॉयर और यूर अ जज, और बेल एप्लीकेशन आपके पास आई है, तो कितने टाइम के अंदर आपको बेल पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करना है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लिमिट फिक्स कर दी है, तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं किया तो इस पे एक्शन हो सकता है बाय द हाई कोर्ट। और तो ये तो लॉयर्स के बेनिफिट के लिए ज़्यादा है, और जजेस के लिए जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए कि व्हाट द एस्पायरिंग जजेस शुड नो द लिमिट दैट हैज़ बीन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पॉइंट इज़ 1 वीक। ये कब हुआ? ये हुसैन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 मार्च 2017 को डिसाइड हुआ है, तब हुआ है। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड that or that keeping in view the article 21 and the mandate of the fundamental rights of the accused, it is desirable that the high court frames annual action plan and fix a tentative limit for the subordinate courts in deciding criminal trials of the person, and held that as far as possible bail applications in the subordinate courts should ordinarily be decided within 1 week, और high courts में कितने दिन में हो जानी चाहिए? 2 से 3 हफ्ते में। ऑल राइट, ये ऑर्डिनरली है। तो अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताता हूँ जो इस केस से आती हैं। द हाई कोर्ट में इशू डायरेक्शंस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट बेल एप्लीकेशन बी डिस्पोज्ड ऑफ नॉर्मली विद इन 1 वीक। बी, मैजिस्ट्रियल ट्रायल्स जो इन विच द अक्यूज्ड आर इन कस्टडी बी नॉर्मली कंक्लूडेड विद इन 6 months। सेशंस ट्रायल विद अक्यूज्ड आर इन कस्टडी नॉर्मली कंक्लूड हो जाए 2 साल में। एफर्ट टू बी मेड टू डिस्पोज ऑफ ऑल द केसेस विच आर 5 years old बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब जब भी मैजिस्ट्रेट्स को देखेंगे ना, वो जनरली 5 साल या उससे पुराने केसेस डील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलता है उस बात का। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्चुअली लेड डाउन इन दिस केस कि द इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द मैजिस्ट्रेट एंड द ट्रायल जजेस हु डील विद दोज केसेस विच आर 5 years और ओल्डर। तो फर्दर इट सेज as a supplement to section 436A of the CRPC, but consistent with the spirit thereof, if the under trial has completed the period of custody in excess of the sentence likely to be awarded if the conviction is recorded, such under trial must be released on a personal bond. Such an assessment must be made by the concerned trial courts from time to time. ये क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट हाफ ऑफ द पीरियड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर उसकी स्पिरिट की बात कर रहा है 436A की। 436A जनरली ये कहता है कि मान लीजिए कि जब आपने हाफ ऑफ द सेंटेंस गुजार लिया है तो आपको बेल या पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रायल जजेस को ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर उन्होंने अंडर ट्रायल को कन्विक्ट किया तो कितने टाइम के लिए करेंगे। मान लीजिए 10 साल की सज़ा है तो ज़रूरी नहीं है जज 10 साल का करे, जनरली 5, 3 ऐसे की सज़ा देता है, 5 साल या 3 साल, 10 की 10 पूरी नहीं देता जनरली, अनलेस द फैक्ट्स आर सो ग्रेव। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रायल जजेस ये सोचें कि अगर मान लीजिए उसने ये मान लिया कि मतलब ट्रायल की ऐसी स्टेज पे मैटर है कि जहाँ उसे लग रहा है कि वो हो सकता है कन्विक्ट कर दे, और अगर वो कन्विक्शन देता है तो सेंटेंस कितना देगा। अगर जज के दिमाग में कि अगर मैं कन्विक्ट करता हूँ तो मैं सेंटेंस 3 साल का दूंगा और अक्यूज 1.5 साल कस्टडी में रह गया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ऐसे केस में आप उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि उसने जो भी सेंटेंस आप देने वाले हैं उसने आधा तो गुजार लिया है। कई बार तो ट्रायल जजेस कैसा सेंटेंस सुनाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस भी यही करते हैं कई बार, मतलब हर केस में नहीं, माइनर केसेस में यही करते हैं कि
जो सेंटेंस है, जो फाइंडिंग ऑफ कन्विक्शन है, उसमें ये कह देते हैं कि sentence will be the same as the period that he has gone as an under trial prisoner. तो मान लीजिए अंडर ट्रायल वो 6 महीने रहा, तो 6 महीने का सेंटेंस रिकॉर्ड कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो, क्योंकि अंडर ट्रायल वो 6 महीने रह ही चुका है, तो उसने अपना सेंटेंस भी बिता लिया. ऑलराइट, सो इसी स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जज को लगता है कि वो गिवन केस में मान लीजिए 10 साल तक की सजा है, पर वो 3 साल ही देगा और अक्यूज ने 1.5 साल बिता लिए, तो अगर जज को लगता है कि कन्विक्शन के बाद उसे सिर्फ 3 साल का ही सेंटेंस देना है और वो ऑलरेडी 1.5 साल बिता रहा है, तो उसे पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दो. ये डायरेक्शन का मतलब है. सो जो टाइमलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, it also said that it is a touchstone for assessment of a judicial performance in ACR reports. तो देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स का प्रमोशन ACR के बेसिस पे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका जो ACR है कंसिडर ही इन्हीं सब जो असेसमेंट पॉइंट है, इन्हीं सब बातों पे आपको असेस किया जाएगा. तो ये जजमेंट ध्यान में रखिएगा, 5 साल के पहले केसेस डिटरमाइन करिएगा और एस्पायरिंग जजेस बेल एप्लीकेशन कम से कम 1 वीक में ही डिटरमाइन कर लें, जिससे उनका ACR अच्छा हो, जल्दी जल्दी प्रमोट होके सुपीरियर कोर्ट के भी जज बने. And the high courts are requested to ensure that the bail applications filed before them are decided as far as possible within 1 month, and criminal appeals where the accused are in custody for more than 5 years are concluded at its earliest. फिर आगे क्या डायरेक्शन दिए? The high courts may prepare, issue and monitor appropriate action plan for the subordinate courts. The high court may monitor steps for speedy investigations and trials on administrative and judicial side from time to time. The High Court may take such stringent measures as may be found necessary in the view of the judgment in ex Captain Harish Uppal versus Union of India. इसमें जो लॉयर्स बीच बीच में स्ट्राइक कर देते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फ्राउन अपॉन किया है. उसने कहा है कि दिस एक्शन शुड नॉट बी टेकन, और जनरली अगर लॉयर्स इलीगल स्ट्राइक्स करते हैं तो कंटेम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन बाय द हाई कोर्ट, और हो सकता है लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए इन दिस केस. तो कैप्टन हरीश uppal की गाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, और उसी गाइडलाइंस को रिटरेट किया है और वो बोला है कि इस पे हाई कोर्ट एक्शन ले वेयर एवर द स्ट्राइक्स एंड सस्पेंशन ऑफ वर्क इज इलीगल. तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी. फिर नेक्स्ट इशू जिस पे हम आते हैं कि लेट अस सपोज कि देयर इज एन अक्यूज्ड. अब पहले जो ऑफेंसेस थे वो बेलेबल थे, फिर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐड हो गया, है ना. तो ये तो आपको सिचुएशन पता है कि ऐसे केस में उसको नॉन बेलेबल एप्लीकेशन के लिए भी फ्रेश बेल एप्लीकेशन करनी होगी. लेकिन लेट अस सपोज ही वाज रिलीज्ड ऑन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. द फर्स्ट चार्जशीट दैट वाज गिवन अगेंस्ट हिम वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ non-bailable offense. Let's suppose grievous hurt by a way of blunt weapon या attempt to murder. ठीक है, attempt to murder का केस हम लोग बना देते हैं, जनरली नॉन बेलेबल होता है वो. तो ऐसे सिचुएशन में क्या अगर मान लीजिए जो विक्टिम है जिस पे अक्यूज ने अटैक किया था वो चार्जशीट के सबमिशन के बाद मर जाता है, लेट अस सपोज कि जो इंजरीज उसकी बॉडी पे थी उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, ही डाइज. सो ऐसी सिचुएशन में क्या जब एक तब तो 302 के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी भेजी जाएगी, फर्दर रिपोर्ट भेजी जाएगी मैजिस्ट्रेट को कि द विक्टिम हैज़ डाइड एंड नाउ द केस इज़ नॉट ओनली ऑफ 307, इट इज़ ऑफ 302 अंडर द इंडियन पेनल कोड. तो क्या ऐसे केस में जब एडिशन ऑफ ऑफेंस होता है और अक्यूज्ड को ऑलरेडी बेल पे छोड़ा गया है, तो ऐसे केस में क्या बिना कोर्ट की परमिशन के आप इसे अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर? सुप्रीम कोर्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. इट सेड कि in respect of the circumstances where after the grant of bail to an accused further cognizable and non-bailable offences are added. ऐसे हमारे इलस्ट्रेशन में मान लीजिए ए ने बी को बहुत पीटा
और इतना पीटा कि वो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया। हॉस्पिटल में बी की मौत हो जाती है बाद में। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में वो पहले ही बेल ले चुका था। नो अंडर लेट सपोज ही अप्रोच द सेशन जज के पास गया था वो डायरेक्टली, एंड ही गॉट द बेल अंडर 439 ऑफ द CRPC। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब बी मर गया तो फर्दर सेक्शंस ऐड होंगे, जैसे 302 का मैटर अब लगेगा, तो क्या अब इस केस में क्या डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगा पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन लिए? सुप्रीम कोर्ट हैज सेड जनरली नो, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऐसे सिचुएशन में 4 फैक्टर्स होंगे। पहला सिचुएशन क्या होगा कि इन दिस सिचुएशन अक्यूज्ड कैन सरेंडर एंड अप्लाई फॉर अ बेल फॉर अ न्यूली एडेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। इन द इवेंट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ बेल द अक्यूज्ड कैन सर्टेनली बी अरेस्टेड। तो पहली सिचुएशन में अक्यूज्ड खुद ही आके सरेंडर कर दे, और जब वो अप्लाई करता है बेल के लिए, नई बेल के लिए ऑन द न्यूली एडेड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी तो वो अरेस्ट हो सकता है और उसे कस्टडी में डाला जा सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, लेट अस सपोज इन आर केस पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वाइडर टर्म है, इसमें CBI भी आ जाती है, पुलिस भी आ जा सकती है, या कोई भी और ऐसी एजेंसी जिसको स्पेसिफिकली टास्क दिया गया है फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ऑलराइट, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कैन सीक एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट फॉर कैंसलेशन फॉर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड इट्स कस्टडी। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डायरेक्टली अप्लाई कर सकती है कोर्ट को, वो बोल दे कि सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेज में सीरियस ऑफेंसेज ऐड हो गए हैं और सिविरिटी ऑफ द चार्ज बढ़ गया है, तो इन दिस सिचुएशन हिज बेल शुड बी कैंसल्ड। नए ऑफेंसेज अराइज हुए हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब मोर सीवियर ऑफेंसेज दिखते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल। तो इसके लिए आयो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को, प्रोसिक्यूशन कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू कैंसिल हिज बेल। फिर court in the exercise of power under 437(5) or 439 subsection 2 of the CRPC can direct for taking into custody of the accused person who has already been granted bail after cancellation of his bail, कि बेल पहले तो कोर्ट कैंसिल करे और खुद ही से डायरेक्ट कर दे कि इनको कस्टडी में ले लिया जाए। और जो लास्ट पॉइंट है, ये हमारे आंसर को डायरेक्टली, ये हमारे क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करता है। ये कहता है कि इन अ केस वेयर द अक्यूज्ड हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल, the investigative authority on addition of an offense or offenses may not proceed to arrest the accused, but for arresting the accused on such addition of offenses or offenses, it needs to obtain an order to arrest the accused from the court which has granted the bail. तो पहले उन्हें एक ऑर्डर टू अरेस्ट लेना होगा कोर्ट से which has granted it bail. So that is mandated by Supreme Court। ये 2019 में डिसाइड हुआ है, ये 1 जुलाई 2019 को। सो कीप इन माइंड दिस इज़ फेयरली न्यू, और ये 4 सिचुएशंस हैं। तो जनरली जब न्यू ऑफेंसेस अप्लाई होते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ को कोर्ट की परमिशन लेनी होती है फॉर अरेस्टिंग, या तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए ले, या तो अक्यूज खुद ही सरेंडर कर दे, या तो कोर्ट सुमोटो कैंसिल कर दे after coming in knowledge about these facts ki further offenses have been added and the case has now become of a more severe nature, and now the bail that has been originally granted to the accused will not be fitting in these circumstances and he must be taken into custody. Alright, तो ये 4 सिचुएशन है, और जो लास्ट सिचुएशन है उसको डायरेक्टली आंसर किया कोर्ट ने कि ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं होगा, पर पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी इन ऑर्डर टू अरेस्ट द अक्यूज फ्रॉम। और किस कोर्ट से लेनी होगी? उस कोर्ट से लेनी होगी जिसने बेल ग्रांट की। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द परमिशन टू बी टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी शैल बी फ्रॉम दैट कोर्ट विच हैज़ ग्रांटेड बेल। इस जजमेंट में TT एंथनी का भी केस रेफर हुआ था, थोड़ा ऑफ पॉइंट है पर मैं बता देता हूँ। TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक सेकंड FIR के रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी कि जब क्रॉस केस में FIR नहीं होती है, जैसे होता है ना, 2 पार्टीज आपस में लड़ती हैं और दोनों राइवल कंटेंशन सेम ट्रांजैक्शन के बताते हैं, तो क्रॉस FIR कहलाती है। और सेकंड FIR वो होती है कि मान लीजिए A ने पहले एक FIR की, फिर थोड़े टाइम रुक गया, फिर दूसरी FIR की, तो जो और सेम इंस्टेंस को लेके
क्योंकि आपको पता है एफआईआर होने के बाद सीधे 161 का स्टेटमेंट लग जाता है, और जो एफआईआर होती है उसको तो कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर 161 की जो स्टेटमेंट होते हैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो टीटी एंथनी में जो सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, लेट सपोज कोई प्रोसेस ऑफ लॉ अब्यूज़ करने की कोशिश करे और सेकंड एफआईआर भी कॉरपोरेशन के लिए यूज़ करने की कोशिश करे रिगार्डिंग द सेम इंस्टेंस, उसको आर्टिकल 21 का वायलेशन मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बोला था कि आफ्टर डिटेल्ड एग्जामिनेशन कि जो सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर है इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21, और ऐसे केस में जो हाई कोर्ट है, अगर मान लीजिए सेकंड एफआईआर में रिगार्डिंग द सेम इंस्टेंस चार्जशीट भी भेजी जाती है, देन इट कुड बी क्वाश्ड। डू नॉट कंफ्यूज इट विद अ क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर में सेम ट्रांजैक्शन को लेकर दो पार्टीज राइवल कंटेंशन करती हैं एक ही टाइम पे, वो बात अलग है। सेकंड एफआईआर एक ही कंप्लेनेंट सेम इंस्टेंस को लेके बार बार अगर करता है इन ऑर्डर टू मेक हिज एविडेंस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एफआईआर को तो कॉरपोरेशन कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट अगर एक बार एक इंस्टेंस में एफआईआर हो गई और उसके बाद बाकी अगर आप फिर से कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहो जिसको आप ट्रायल पे कॉरपोरेशन के लिए यूज़ करोगे तो नहीं कर पाओगे, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने, क्योंकि 161 लग जाता है। ऐसे में या तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा, लेकिन अगर पुलिस के सामने जाना है और एक एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है तो 161 का स्टेटमेंट लग गया, 162 ऑफ द सीआरपीसी का बार लग जाता है। 161 की जो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज 162 इज एक्चुअली बारिंग इट। वो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं 161 के स्टेटमेंट। तो जो सेकंड एफआईआर रिगार्डिंग द सेम ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, और ऐसे केस में अगर मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर होती है सेकंड एफआईआर बाय द सेम पर्सन और सक्सेसिव एफआईआर रजिस्टर होती हैं रिगार्डिंग द सेम केस जो काउंटर केस नहीं है या जो क्रॉस एफआईआर नहीं है, तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसी सक्सेसिव एफआईआर या इसके बेसिस पे कोई चार्जशीट, हाई कोर्ट सेक्शन 482 या आर्टिकल 226 और एड विद आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वाश कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। ये टीटी एंथनी के केस में हेल्ड हुआ था। तो क्योंकि प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में यही केस भी रेफर हुआ था, इसलिए आई जस्ट टोल्ड यू आपको अपने पहले सेशन पे ले जाने के लिए। पहले सेशन की बात है, आपको याद होना चाहिए कि 154 किस तरीके से यूज़ होता है, 161 के स्टेटमेंट पे क्या बार है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, 164 के स्टेटमेंट कैसे यूज़ किए जाते हैं, कन्फेशन क्या होता है। यू शुड ऑल बी रिमेंबरिंग दैट। अगर नहीं याद है तो जस्ट हैव अ रिफ्रेशर कोर्स इज दैट। तो अब आफ्टर 2018 अमेंडमेंट इन सीआरपीसी आपने देखा होगा कुछ नए सेक्शन ऐड किए गए सीआरपीसी में। तो वो जो नए सेक्शन हैं दे आर मैंडेटेड। I'll just read the section for the sake of your convenience. He refer to section 439(1)(a), which says that the presence of informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application of bail to the person under subsection 3. Bail to a person who is accused of an offence under subsection 3 of 376, 376AB, 376DA, DB of the Indian Penal Code. तो मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, यहाँ पे प्रेजेंस मैंडेटरी है। और मैंने बताया था दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस डायरेक्शंस दिए हैं इस केस में। तो रीना झा एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसको पॉक्सको एक्ट पे भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो ऑफेंसेस रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन होते हैं तो उसके मैटर्स में जब हियरिंग होती है तो उस पर भी ये प्रोविज़न का बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है, और हाई कोर्ट ने रीना झा में ये किया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में इट इज़ मैंडेटरी कि एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल इन सेक्शन 439 when the offences fall under 376 ABD DA in accordance with section 1A of the section 439 of the CRPC और पॉक्सको एक्ट में, तो
तो in that situation, the presence of the victim, complainant or anyone on their behalf is necessary. उनकी hearing necessary है, ठीक है. ये reiterate हुए थे in Miss G versus State. एक केस था मिस जी वर्सेस स्टेट, अभी हाल ही में हुआ है. इसी में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से ये बात बोली थी कि प्रैक्टिस डायरेक्शन को फिर से डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस को सर्कुलेट कर दीजिए फॉर इट्स कंप्लायंस, क्योंकि कई जजेस अभी भी इस प्रोविजन को इग्नोर कर रहे हैं. ऑलराइट, सो यही एक बात बतानी थी कि इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. इस केस में यही हुआ था कि प्रोसीजरल लैप्सेस हुए थे, क्योंकि कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर की कंप्लेनेंट की थी इन रिगार्डिंग टू दी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 376 ए बी डी ए और डी बी ऑफ दी आईपीसी, उनको हियरिंग नहीं किया गया था. उनको अपॉर्चुनिटी पर हियरिंग नहीं दी गई थी ऐसे कंप्लेनेंट को एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल. तो प्रोसीजर लैप्स माना था हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बोला था कि उनको डायरेक्ट उनको हियरिंग दीजिए और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और वापस प्रैक्टिस डायरेक्शन रीइटरेट किए मिस जी वर्सेस स्टेट में. ऑलराइट, तो अब हम आते हैं कुछ एक इशू पे. एनडीपीएस एक्ट में एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 37. जब आप बेल लेते हैं तो क्या लिबरल अप्रोच आपकी हो सकती है इन ग्रांट ऑफ बेल, जैसे कि आपकी आईपीसी के ऑफेंसेस में होती है? अब देखिए, जब भी आप स्पेशल स्टैट्यूट से डील कर रहे हैं ना, तो स्पेशल कंसिडरेशंस आते हैं. जो अभी तक मैंने आपको गाइडलाइंस और पैरामीटर्स बताए, ये तो जनरल लॉ के लिए तो ठीक है, पर स्पेशल लॉ में ना एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है और एक एक्स्ट्रा एडिशंस हो जाते हैं उसमें. तो ये तो गाइडलाइंस होंगी ही, और साथ में फिर एक्स्ट्रा जो मैंडेट्स होते हैं स्पेशल स्टैट्यूट्स के, उनको भी डील करना होगा. तो एनडीपीएस एक्ट में, दैट इज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप बेल ग्रांट करते हैं ना 37, तो आप लिबरली नहीं ग्रांट कर सकते, क्योंकि सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट में रीजनेबल ग्राउंड का मेंशन है, प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स का मेंशन नहीं है. उसको आप प्राइमा फेसाई केस पे नहीं कंसिडर करते. अंडर दैट the Supreme Court has mandated to every single court in the country that while you are granting bail under NDPS Act, you cannot grant it on the basis of prima facie grounds. You have to grant it on the basis of reasonable grounds. अच्छा, reasonable grounds और prima facie grounds में क्या difference है? Reasonable grounds contemplates substantial probable causes for believing that the accused is not guilty of the alleged offense. 37 of the NDPS Act कहता है कि कोर्ट को एक ये reasonable grounds for believing होना चाहिए कि the accused is not guilty of the offenses that is being alleged against him, और उसी के बेसिस पे वो बेल ले सकता है. और दूसरा एक और भी ग्राउंड इसमें ये भी होता है कि वो फर्दर वो ऑफेंस नहीं कमिट करेगा जिसके लिए वो अक्यूज्ड है. तो ऐसे केस में कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ना कि प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स पे. एनडीपीएस एक्ट का देखिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं आपको स्पेशल स्टैट्यूट्स में कैसे ये लॉ काम करता है मैं बता रहा हूँ. अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स पे नहीं करते, आप रीजनेबल ग्राउंड्स पे कर रहे हैं. तो एनडीपीएस एक्ट मैंडेट करती है रीजनेबल ग्राउंड्स पे ही आप बेल ग्रांट करेंगे. तो जो रीजनेबल बिलीफ है ना, एज इट्स कंटेम्पलेटेड इन द प्रोविजन, इट रिक्वायर्स existence of such facts and circumstances as are sufficient in themselves to justify the satisfaction that the accused is not guilty of the alleged offense. तो इनका जो burden of proof है ये higher है prima facie ground से. तो NDPS एक्ट में कभी लिबरल अप्रोच बेल की नहीं होती. तो जो भी लॉयर्स NDPS साइट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दे शुड बी वेरी अवेयर कि एनडीपीएस एक्ट में स्पेशल ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करने होते हैं इन ऑर्डर टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. वो प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स पे आपको रिलीज़ नहीं किया जा सकता, स्पेशली अंडर सेक्शन 37. सेक्शन 37 को लेके स्पेशली फाइंडिंग है अंडर एनडीपीएस एक्ट में, और उसमें लिबरल अप्रोच फॉर द ग्रांट ऑफ बेल नहीं होती है. ऑलराइट, सो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 पढ़ ले. उसमें बेसिकली इतना ही बताया गया है कि जब भी आप किसी को रिलीज़ करेंगे, नो पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड
ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 19 और 24 और 27A, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स बरामद हुए हैं, शैल बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, और दूसरा फॉर हियरिंग नहीं दी गई है टू अपोज सच एप्लीकेशन फॉर रिलीज, और दूसरा है कि द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offense and that he is not likely to commit an offense while on bail. तो ये सारे grounds आपको आर्ग्यू करने पड़ेंगे और ये सारे grounds आपको establish करने पड़ेंगे. So I hope you know that special and under special acts special provisions will be there. अब कोविड केसेस में ये थोड़ा एक्सेप्शनल है क्योंकि कोविड एकदम नई चीज़ है, कोरोना वायरस. तो लेकिन ये जब भी आप एग्ज़ाम देंगे ना, जब भी ये वायरस कभी तो डाउन हो गई, तो ऐसे केस जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जो ये डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इनसे लेके सवाल आ जाए. तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्पेशल डायरेक्शन दैट द सुप्रीम कोर्ट गेव रिगार्डिंग द कोविड केसेस. और सू मोटो रिट पिटिशन थी, रिट नंबर 1 ऑफ 2020, ये सू मोटो जो थी इन री-कंटेजियन ऑफ कोविड-19 वायरस इन प्रिजन्स. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया है कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे और उसमें एक चेयरमैन होगा ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस कमेटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा होम और प्रिजन डिपार्टमेंट, चाहे जिस भी डिजिग्नेशन से उसका नाम हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स होगा जो डिटरमाइन करेगा विच क्लास ऑफ पर्सन्स कैन बी रिलीज्ड ऑन पैरोल और ऑन इंटरिम बेल फॉर सच पीरियड एज मे बी थॉट अप्रोप्रिएट. और एक इंस्टेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कुछ कंसिडर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हु हैव बीन कन्विक्टेड और हु आर अंडर ट्रायल फॉर ऑफेंसेस फॉर विच प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट अप टू 7 years और लेस. 7 साल से कम के जितने भी ऑफेंसेस हुए उनको रिलीज कर दिया जाए, चाहे वो पनिशेबल हो विद या विदाउट फाइन. एंड और फिर आगे बोला है कि ये जो डायरेक्शन वो दिया है वो उसकी रीजनिंग ये है कि जो प्रिजन्स है ना इंडिया के वैसे भी ओवर क्राउडेड हैं बहुत ज़्यादा. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स को उसने कंसल्ट किया कि जो प्रिजन्स हैं, इंडियन प्रिजन्स की ऑक्यूपेंसी रेट इज़ राइट नाउ एट 117.6%. Especially in the state of Uttar Pradesh and Sikkim, the occupancy rate is as high as 176.5% and 157.3% respectively. और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कंसर्न इसलिए दिखाया है क्योंकि कोरोना वायरस का कंटेजियन क्राउडेड प्लेस में सबसे तेज़ी से फैलता है. तो इट डजंट वांट कि द पर्सन्स हु हैव बीन कन्विक्टेड और गोइंग और इज सफरिंग imprisonment एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, उनकी सफरिंग्स रिलैक्स करने के लिए इट हैज़ इशूड सच अ डायरेक्शन. और इसका प्राइमरी पर्पस है टू कंजेस्ट जेल्स, जिससे कहीं जेल में कोरोना वायरस ना फैल जाए. तो ये हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल आ जाए अंडर द जीके सेक्शन. एक और काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइज की है. और उसने जितना भी लिमिटेशन पीरियड है ना फॉर फाइलिंग ऑफ पिटीशंस, एप्लीकेशन, सूट प्रोसीडिंग, इंडिया के किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में सारे लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिए हैं. इससे कंफ्यूजन भी अराइज हो गई कि क्या 167 का जो 60 और 90 डेज़ का पीरियड है वो भी एक्सटेंड हुआ है या नहीं. अभी उस पर भी हियरिंग चल रही है. एक हाई कोर्ट ने व्यू लिया है कि हाँ वो भी एक्सटेंड हो गया है, कई हाई कोर्ट्स ने व्यू लिया है कि नहीं वो इंडिफिजिबल राइट है, वो नहीं एक्सटेंड हुआ है. तो इस पर कन्फ्यूजन है. तो अभी इसको सुप्रीम कोर्ट हेयर कर रहा है इस मैटर को. आई थिंक कल ही नोटिस भेजी है उसने स्टेट को, यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग दैट इशू. तो इस पर अभी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक बोलना ठीक नहीं होगा. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर पे क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दिया कि साइंड और अटेस्टेड वकालतनामा और एफिडेविट्स की का इंसिस्टेंस नहीं होगा दिल्ली में फॉर द टाइम बीइंग, जब तक लॉकडाउन इज इन फोर्स इन द स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली. तो इन दैट सिचुएशन इन जो कोर्ट्स ने काम किया ना, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आज नहीं कल पूछे जाएं. सो दैट इज़ वाई बी वेरी ऑफ दीज थिंग्स. कोविड का स्पेशली करंट अफेयर्स से मिक्स करके लीगल सवाल है. सो
बेल ग्रांट के बात हो गई, बेल कैंसिलेशन की बात हो गई। एक मेन बात ये है कि आपको दो और फैक्टर्स बता देता हूँ कि जब आप अपील फाइल करते हो एंड अ पर्सन, लेट अस सपोज अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही फाइल्स एन अपील बिफोर अ हायर फोरम, सुपीरियर कोर्ट में अपील फाइल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, अब इसमें एक एक लाइन के कंसेप्ट हैं। अब इसमें बोला है कि इफ द कोर्ट इज नॉट इन अ पोजीशन टू हियर द अपील ऑफ एन अक्यूज्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डिसाइड करेंगे। देन द कोर्ट शुड ऑर्डिनरली, अगर वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में सुन नहीं सकता तो ऑर्डिनरली उसको अक्यूज्ड को बेल पे रिलीज कर देना चाहिए इन केसेस वेयर द स्पेशल लीव टू अपील हैज बीन ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड टू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस। तो ऐसे केस में उसको रिलीज कर देना चाहिए अगर कोर्ट को लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट अनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस केस में और बाकी सारे फैक्टर्स के साथ, देखिए बेल हमेशा मेरिट पे ही ग्रांट होगी। अब जो अपील में जो बेल के रूल्स होते हैं, बाकी सारे वही फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे जो जनरली बेल के ग्रांट करने में किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कंसिडर की जाएगी कि नाउ द पर्सन सिंस ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, तो अब वो क्रिमिनल लॉ का प्रिजम्पशन काम नहीं करेगा कि इज अज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जैसा कि पहले कर रहा था। अब वो नहीं है, नाउ इज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो अपील पे जो बेल के ग्राउंड्स है ना, दे आर वेरी वेरी नैरो। अलॉन्ग विद द मेरिट्स ऑफ द ग्रांट ऑफ बेल, जो टैम्परिंग और थ्रेटनिंग द विटनेस या बाकी सारी चीज़ें हैं उनको चीज़ों, या फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, ये यहाँ पे प्राइमेसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि क्या कोर्ट उसे रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकता है या नहीं। अच्छा, रीज़न क्या है कि कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया? उसने ऐसा इसलिए दिया कि अगर हमने स्पेशल लीव अगर एडमिट कर लिया है, इसका मतलब हमें केस में हो सकता है कोई फॉल्ट दिख रही हो तभी हमने एडमिट किया है, वरना समैरली डिस्पोज ऑफ कर देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन यू आर एडमिटिंग एन अपील, देन अगर आप रीजनेबल टाइम में नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यही है ना कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि जस्ट इन केस यू डिसाइड कि यस अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और अफर्म कर देते हैं जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, तो ऐसे केस में अक्यूज को तो अपना बाकी सेंटेंस सहेगा ही सहेगा। लेकिन जस्ट इन केस आप ऑपोजिट कंक्लूजन पे आ गए कि नहीं, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो एकदम गलत था, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट एकदम गलत है, तो ऐसे केस में आपने अगर अपील टाइम पे नहीं डिसाइड की और उसको बेल भी नहीं दी, तो फिर आप उसके जो खोए हुए साल हैं उनको कैसे लौटाओगे? वो तो उस पॉइंट पे कन्विक्ट हो गया जो एक तो इलीगली कन्विक्ट हुआ बिना एविडेंस को कंसिडर किए हुए, या कोई भी ग्राउंड या एरोनियस जजमेंट था जिसके बेसिस पे ओवरटर्न किया गया, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो ऐसे केस में जो उसके खोए हुए साल हैं वो तो उसके पास आ नहीं जाएंगे। तो कोर्ट को जनरली अगर वो अपील समैरली डिसमिस नहीं कर रहा है और एडमिट कर रहा है, तो जनरली उसको ये एक बेल को कंसिडर करना चाहिए कि अगर वो अपील जल्दी नहीं डिसाइड कर सकता तो ऑर्डिनरली उसको कोजेंट ग्राउंड्स में मेरिट ऑफ द मैटर कंसिडर करके बेल के जो रूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच बेल इज ग्रांटेड, उन सबको कंसिडर करके बेल ग्रांट करते ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि अगर जस्ट इन केस कोर्ट ने पाया, सुपीरियर कोर्ट ने पाया कि नहीं इज गिल्टी, तो क्या बेल कैंसिल कर देगा, वापस उसे कस्टडी में डाल देगा, वो अपना बाकी सेंटेंस रहेगा। लेकिन जस्ट इन केस वो अपोजिट फाइंडिंग में आया तो इसलिए बोला। लेकिन एब्सोल्यूट रूल नहीं है, बस मैं आपको क्या कहते हैं एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूँ। इट इज़ ओनली फॉर योर एकेडमिक पर्पस। डिले इन ट्रायल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये डॉक्टर विनोद भंडारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बोला। अब देखिए, प्री कन्विक्शन स्टेज पे देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो जब तक आदमी कन्विक्ट नहीं होता है, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग अ पर्सन इन कस्टडी इज merely टू ensure his availability to face trial and to receive the sentence that may be passed। ये कन्विक्शन से पहले की स्टेज है। जब एक बार कन्विक्ट हो जाता है ना, तो फिर जो कस्टडी का पर्पस हो जाता है वो है कि आप सेंटेंस सफ़र करो जो कोर्ट ऑफ लॉ ने पाया है कि दैट यू आर गिल्टी ऑफ। तो मैं अभी प्री अपील पे जो मैंने बात की,
वो थी पोस्ट कन्विक्शन स्टेज की। जब मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ तो मैं प्री कन्विक्शन स्टेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कन्विक्ट नहीं हुआ है। दैट इज वाई ट्रायल इज हैपनिंग। So the object of keeping a person in custody in pre-conviction stage is to make sure that he is available to face the trial and receive the sentence that may be passed. Detention is not supposed to be punitive or preventive. Seriousness of the allegation or the availability of the material and support thereof are not the only considerations for declining bail. Delay in commencement and conclusion of the trial is also a factor to be taken into account, and the accused cannot be kept in custody for indefinite period if the trial is not likely to be concluded within a reasonable time. All right, तो डिले इन ट्रायल भी एक रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है। अभी मैंने अब इम्पाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट की बात की थी, तो इस पे एक जजमेंट है। जो जनरली कोर्ट्स क्या करते थे ना, पासपोर्ट इम्पाउंड कर लेते थे मैकेनिकली। 498A का केस लगा, अब कोई व्यक्ति यूएस से आए हैं, रिश्तेदार घर पे मिलने, 498A का केस लग गया, वो भी रोपिन हो गए, अरेस्ट हो गए। अब कोर्ट बेल देते वक्त बोल रहा है कि अब अपना पासपोर्ट आप यहीं पे जमा करो। अब पासपोर्ट जमा करने का मतलब है कि वो वापस नहीं जा सकते, और अगर वो वापस नहीं जा सकते और उनका सारा जॉब वहीं में है, सारा फैमिली यूएस में है, तो डोंट यू थिंक दैट द कंडीशन ऑफ अ बेल इज़ वेरी ऑनरस। और ऊपर से कि क्या पासपोर्ट एक्ट के बाहर एक और इश्यूज में राइज होता है, क्या पासपोर्ट एक्ट के बाहर भी कोर्ट पासपोर्ट को इम्बाउंड कर सकता है? तो इस इशू का आंसर हुआ था सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई में, 24 जनवरी 2008 को डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इन आवर ओपिनियन द कोर्ट कैन नॉट इम्पाउंड अ पासपोर्ट, though no doubt section 104 of the CRPC states that the court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it. In our opinion, this provision will only enable the court to impound any document or thing other than a passport. तो पासपोर्ट के अलावा आप कोई भी चीज़ इम्पाउंड कर सकते हो। देखिए, इम्पाउंडिंग और सीजर में बड़ा अंतर होता है। सीजर क्या होता है कि जब आपने सीज कर लिया, आपने कोई चीज़ पकड़ ली, तो पुलिस सीज करती है, पर उसके पास रिटेंशन की पावर नहीं होती है। वो रिटेन नहीं कर सकती, वो अपने पास रख नहीं सकती, वो सीज कर सकती है। सीज करके उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द सीजर एंड इम्पाउंडिंग इज दैट द सीजर इज ऑफ अ वेरी स्मॉल पीरियड, दैट इज merely the possession of the property, and it is done for a particular moment of time. However, after seizing the property or a document, if the property or document is to be retained for a period of time, then such retention is called impounding of the property or document. तो impounding और seizure में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देखिए, पासपोर्ट एक्ट स्पेशल लॉ है, सीआरपीसी जनरल लॉ है। तो क्या प्रिंसिपल है स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन का कि जनरली स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, कि अ जनरल एक्ट, a general law does not act in derogation of a special law. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट फाउंड कि पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 के बाहर आप उसको इम्पाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्ट है इट इज एग्जॉस्टिव इन दैट रिगार्ड। साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 हैज़ टू बी, तो जो भी प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 का क्या कहते हैं पैरामीटर्स सेटिस्फाई करता है, उसको जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना ज़रूरी है। इट शुड बी अ ड्यू प्रोसेस, वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता। और you should always remember that since it has been held, right to travel award has been held to be at the level of a fundamental right. ये मेनका गांधी में भी डायरेक्टली इन क्वेश्चन था, मेनका गांधी का पासपोर्ट ही इम्पाउंड किया गया था, और तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर फिर काफ़ी एलैबोरेशन किया, और फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो जाएगा। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल इन टू दैट, बट मेन आपको ये बताना है कि जो इम्पाउंडिंग ऑफ अ पासपोर्ट है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, वो एग्जॉस्टिव है इस पॉइंट पे। तो अगर कोर्ट को डॉक्यूमेंट पासपोर्ट को इम्पाउंड करना है, तो जनरली उसे ये करना होगा कि आप पासपोर्ट अथॉरिटी को सबमिट करो, खुद नहीं इम्पाउंड कर सकता।
always keep in mind the Supreme Court has barred the subordinate courts from demanding impounding of passport. जनरली क्या करते थे, लेट अस सपोज आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आपको सेंस समझ में आएगा, इलस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि लेट सपोज देयर इज अ पायलट पे एक फॉल्स एलिगेशन लग जाता है. अब मान लीजिए उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट सीज होते हैं. अब वो पायलट है, वो पैसा कमाता है, उसका काम है इंटरनेशनली प्लेन उड़ाना, जाना, ट्रैवल करना. अब उस पर एक फॉल्स एलिगेशन लगा हुआ है किसी भी ऑफेंस का, कोई भी इमेजिन कर लीजिए, 498A कर लीजिए, एक्सटॉर्शन कर लीजिए, इमेजिन एनी ऑफेंस. अब चूंकि फॉल्स ऑफेंस लगा है तो एक कंडीशन लगाई जाती है कि हिज पासपोर्ट विल बी इम्पाउंडेड, पासपोर्ट प्रोड्यूस करिए, आपका ये हमारे पास रहेगा जब तक ट्रायल नहीं कंक्लूड हो जाए. अब आप मुझे एक बात बताइए, एक पायलट का आपने पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया, कोर्ट ने पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया एक पायलट का, अब ना तो वो ट्रैवल बाहर कर पाएगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट केयर अबाउट अ कोर्ट ऑर्डर, ना तो वो अपना जॉब ढंग से कर पाएगा. और अगर ये दोनों नहीं कर पाएगा तो इसका फॉल आउट क्या होगा? इसका फॉल आउट ये होगा कि he'll be jobless, तो पैसा नहीं रहेगा तो he will not be able to effectively contribute in his defense. लॉयर्स को पैसा देना होता है, प्रोसेस फी होना होता है, लिटिगेशन प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो जब वो नहीं कर पाएगा, उसकी अगर मान लीजिए वो सोल ब्रेड अर्नर हुआ तो उसकी फैमिली भी सफ़र करेगी. तो यू कैन इमेजिन कि पासपोर्ट का ना होना कैन बी अ वेरी डेडली थिंग इन अ वेरी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस. और दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जब ये थ्रेट होता है कि भाई अक्यूज भाग जाएंगे बाहर, तो उनका पासपोर्ट जनरली इम्पाउंड करवा लिया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम का करवा लिया और कार्ति चिदम्बरम का भी करवा लिया. लेकिन जनरल रूल क्या है, जनरल रूल में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को तो प्रोहिबिट किया गया था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मैकेनिकली काम करने लगे थे. मैकेनिकली कोई आदमी है फर्स्ट टाइम फंक्शन पे आया घर पे, 489 का केस लग गया, 498A का केस लग गया. 498A में क्रुएल्टी होता है इन रिलेशन टू अगेंस्ट द हस्बैंड और इन लॉज बहुत लगाया जाता है. और उसमें बेसिकली ऐसे लोग रोप इन कर लिए जाते हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि नेट बहुत लार्ज फेंका जाता है. मान लीजिए कोई बाहर से आया विजिट करने, कोई बाहर का रिश्तेदार है, बाहर रहता है, वो इंडिया आया विजिट करने, इंडिया में ड्यू टू सम फैमिली डिस्प्यूट 498A का केस लगा दिया, उसको भी रोप इन कर लिया. अब वो अरेस्ट कर लिया गया तो उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया. अब ना तो वो वापस जा सकता है यूएस, ना अपनी वो जॉब कर सकता है जहाँ से. और तो इससे ना जो फॉल आउट के इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो कोर्ट ने इस बात पे मॉरेटोरियम लगा दिया कि भाई जनरली कि द कोर्ट्स कैन नॉट इम्पाउंड अ डॉक्यूमेंट. वो कोई भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकते हैं एक्सेप्ट अ पासपोर्ट. द कोर्ट्स कैन नॉट इम्पाउंड अ पासपोर्ट, ये बात याद रखिएगा. इसके लिए सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई का जजमेंट है एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट. ये जजमेंट फॉलो होता आ रहा है. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन अनिला भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी यही पॉइंट रीटरेट किया है कि अगर आप कोई चीज़ सीज करते हैं, इम्पाउंड करते हैं, एंड बाय रेफरिंग टू दिस जजमेंट इट केम टू अ कंक्लूजन कि Passport Act is complete in itself, Section 10, Subsection 3, and the court can impound any document except a passport. पासपोर्ट को नहीं इम्पाउंड कर सकते. अगर आपको पासपोर्ट को इम्पाउंड करवाना है तो आप डायरेक्शन दीजिए कि अक्यूज्ड अपना पासपोर्ट जमा करे पासपोर्ट अथॉरिटी को, कोर्ट विल नॉट इम्पाउंड इट. हाँ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इसके पैरामीटर्स अलग होते हैं. इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जैसे आपके सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड है या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ का मैटर है तो वहाँ पे कर सकता है. पर हम अभी सीआरपीसी के जनरल लॉ की बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आईपीसी केसेस. जो भी लोग आईपीसी के केसेस में आर्ग्यू करेंगे, अगर पासपोर्ट को इम्पाउंड करते हुए देखते हैं मैजिस्ट्रेट को या ट्रायल कोर्ट को, दे कैन ऑलवेज रेज एन ऑब्जेक्शन दैट इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. और अगर मैजिस्ट्रेट या ट्रायल जज उनकी बात नहीं मांगता, दे कैन ऑलवेज मूव टू द हायर फोरम. ऑल राइट. सो इस पर कौन सा केस है? सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई और कैप्टन अनिला भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. दोनों एक 2008 का है, एक 2018 का है. अब दूसरी एक अभी हाल ही में सफूरा जरगर का केस बहुत फेमस चल रहा है. पीपल आर सेइंग दैट उनको बेल पे रिलीज़ कर देना चाहिए, शी इज़ प्रेग्नेंट. एक्चुअली
pregnancy is just one of the factors that is considered in the grant of bail. Not, that is not the sole criteria. If you remember, Nalini was pregnant and she was incarcerated throughout her pregnancy. हाँ, अब ये होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको जेल अथॉरिटीज़ उसकी प्रॉपर केयर में रखते हैं उनको, और जो हॉस्पिटल होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, वो जैसी नीड होती है उनको वैसे ट्रीटमेंट देते रहते हैं. सो दैट इज़ अंडर दिस, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है इनकी केयर और वेलबींग को देखना. पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि सफूरा जरगर के केस में आईपीसी की धारा नहीं लगी है. नॉट ओनली आईपीसी सेक्शन इज देयर, यूएपीए के सेक्शंस भी लगे हैं. और अगेन दैट इज अ स्पेशल स्टैट्यूट. And what are the parameters of special statute? The special statute will have special considerations in extra of the general consideration. जैसे एनडीपीएस का हमने देखा ना, वैसे यूएपी का. तो यूएपीए, the Unlawful Activities Prevention Act, is not very liberal in grant of bail. So if you look at section 43D subsection 5 of UAPA Act, then you will come to a conclusion that again the act is using what words, that the court has to be satisfied of a reasonable grounds for believing that the accusation against the person is prima facie true, and such person will not commit the offenses that has been alleged against him. So the first ground is that the court will see, after giving the opportunity to the public prosecutor for opposing bail, it will see that if there are reasonable grounds for believing that the accusation against such persons are true or not. Again, the issue of reasonable ground came, and however the reasonable ground interpreted in NDPS very strictly, that is different than merely a prima facie case. तो यूएपीए एक्ट में जब कोर्ट को बेल देनी होती है, तो सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, पर केस डायरी और रिपोर्ट और बाकी के मटेरियल को देखने के बाद कोर्ट को इस कंक्लूजन पे आना चाहिए कि देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट सच पर्सन्स आर प्राइमा फेसी ट्रू. कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि वो सच है. दूसरा क्या उसमें देखना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड यूएपीए में जो ग्रांट ऑफ बेल है ना, इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. तो इस पर आपकी एक अथॉरिटी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली. इसमें पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट और टेररिज्म के चार्जेस थे, तो ये काफ़ी सीवियर चार्जेस होते हैं. तो इसमें जो बेल के ग्राउंड्स हैं आर वेरी लिमिटेड एंड दे आर वेरी नैरो एंड वेरी स्ट्रिक्ट. तो ये इतने वाइड और लिबरल नहीं होते जैसे हम लोग जनरली देखते हैं. हालांकि बोला जाता है यूएपीए में कि द अक्यूज्ड हैज़ कम्युनिटी रूट्स. जब एप्लीकेशन आप बेल की कभी दोगे ना यूएपीए के केसेस में, तो उसमें बेल एप्लीकेशन में जनरली मेंशन होता था अक्यूज्ड हैज़ कम्युनिटी रूट्स, विल नॉट इंटरफेयर विद इन्वेस्टिगेशन, विल नॉट टेम्पर विद एविडेंस, विल नॉट इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एक्सेट्रा. अब सारे वो जनरल ग्राउंड्स लेते हो जो लिए जाते हैं, लेकिन वो जनरल ग्राउंड्स तो बेल ग्रांट के लिए मेरिट पे कंसिडर किए ही जाएंगे. वो जनरल ग्राउंड्स तो कंसिडर किए ही जाएंगे, लेकिन साथ में जो स्पेशल ग्राउंड जो यूएपीए बताता है वो भी कंसिडर किए जाएंगे. और स्पेशल ग्राउंड क्या है? The satisfaction of the court as regards to the likelihood of not committing an offence while on bail must be construed to mean an offence under the act and not whatsoever the offence, be it major or minor offence. So what the court says is that जो satisfaction है यूएपीए में, तो जब आप बेल पे जब भी किसी को रिलीज करेंगे यूएपीए में, तो आपको एक जो सेटिस्फैक्शन अपना रिकॉर्ड करना है, वो पहला तो ये होना चाहिए कि देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस. तो पहला क्या है सेटिस्फैक्शन, कि आप मानेंगे ही नहीं कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है. अगर मटेरियल पे ऐसा लगता है, जो भी चार्जशीट या बाकी का जो भी मटेरियल आपके सामने प्लेस किया गया है, जो प्रोसिक्यूशन प्लेस करता है, and after that you come to a conclusion that there is no sufficient grounds for construing that the accused has committed, there are no reasonable grounds for considering that the accused has committed the offense, then in that scenario you are authorized to grant bail.
और दूसरा आपको क्या सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना है, दूसरा सेटिस्फैक्शन है कि आप ये जो जिस पर्सन को हम रिलीज कर रहे हैं बेल पे, ये दोबारा ऐसा, ये कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा जो यूएपीए की कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन वो कोई ऐसा मेजर या माइनर ऑफेंस की कैटेगरी में जो यूएपी के बाहर है वो नहीं कंस्ट्रू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली बोला है इसी केस में। एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली। सो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 कोर्ट्स के ऊपर एक ड्यूटी बन गई है, to be satisfied there is a reasonable grounds for believing that the accusation against the accused are not prima facie true, or if they are and the अगर prima facie true नहीं है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो दूसरा सेटिस्फैक्शन भी रिकॉर्ड कर ले कोर्ट कि आई डोंट थिंक दैट दी accused will commit any other offense under UAPA Act। और लेकिन अगर उसको ये लगता है कि after considering the charge sheet and the material placed by the prosecution, even though all the merits on which the bail is granted are satisfied, लेकिन उसके बाद भी अगर कोर्ट को ये लगता है कि there are reasonable grounds for believing कि accusation is prima facie true और prima facie true, तो ऐसे केस में बेल नहीं ग्रांट करेगा। तो यूएपी में बेल ग्रांट करने के जो चांसेस हैं आर वेरी स्ट्रिक्ट। इस पे चार्जशीट, केस डायरी, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, 161 के स्टेटमेंट सारे कंसिडर किए जा सकते हैं। ऑलराइट, सो और उन्हीं के बेसिस पे अगर जज इस कंक्लूजन में आ गया कि नो, आई थिंक दैट दे आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज्ड इज प्राइमा फेसाई ट्रू, बेल गई, बेल नहीं मिलेगी। इसीलिए द ग्रांट ऑफ बेल टू सफूरा जरगर इज़ नॉट एज सिंपल एज मीडिया इज़ एक्चुअली टेलिंग ऑल ऑफ यू। ये यूएपीए का मैटर है और यूएपीए के मैटर्स आर वेरी सीरियस। तो हालांकि आप जनरल कंसिडरेशंस में जितनी भी मेरिट्स ऑफ द मैटर हैं, जितने भी बेल के मेरिट्स हैं, वो सारे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको कल के लेक्चर में भी बताई थी कि ग्राउंड्स पे आप बेल ग्रांट करेंगे। तो मान लीजिए वो सारी की सारी लिस्ट सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन जो यूएपी के स्पेशल ग्राउंड्स हैं अंडर सेक्शन 43D वो नहीं सेटिस्फाई होते। Bail will be rejected. Bail will be immediately rejected. Special statutes के special grounds होते हैं, always know this। तो so in this scenario the general law and the special law board has to be satisfied। तो special statutes की special demands होती हैं। all right, so if the court comes to a conclusion, फिर reiterate कर रहा हूँ कि the court comes to a conclusion that under 43D there are reasonable grounds for believing that the accusation against the accused is prima facie true, then the bail will not be granted. If it comes to a conclusion that they are prima facie, there are reasonable grounds for believing that they are prima facie not true, then it will embark on another finding that the court will also has to be satisfied that there is no likelihood of the accused committing any offense under the UAPA Act। ये दोनों सेटिस्फैक्शन फिर बेल के लिए रिकॉर्ड करने होंगे और इसके लिए स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स है, रीजन टू बिलीव और रीजनेबल ग्राउंड्स का यूज़ किया गया है। और रीजनेबल ग्राउंड्स आप कैसे कंसिडर करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये फैक्ट्स का असेसमेंट होगा, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे। तो जनरली बेल अंडर यूएपीए इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। जब तभी बेल हो पाती है आसानी से यहाँ पे जब देखा जाए कि पूरा रोपिन किया गया या प्लांटेड एविडेंस है या ज़ीरो एविडेंस है, या जो मटेरियल जो प्लेस किया गया है कोर्ट के सामने उस पर ये कंक्लूजन बन रहा है कि अक्यूज्ड इज एक्चुअली इनोसेंट। उसी मटेरियल पे एक दूसरा कंक्लूजन बन रहा है, वो वाला कंक्लूजन बन ही नहीं रहा है कि वो गिल्टी है या रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द चार्ज इज प्राइमा फेसाई ट्रू, बट टोटली एन ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन इज बीइंग मेड। पर मान लीजिए अगर दो कंस्ट्रक्शन बन गए, जिसमें से एक कंस्ट्रक्शन कहता है कि जिसमें से एक कंस्ट्रक्शन से कोर्ट को लगता है कि दे आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द चार्ज इज प्राइमा फेसाई ट्रू, तो उस केस में भी बेल नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो द यूएपीए इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, एनडीपीएस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, PMLA is very strict law, Prevention of Money Laundering Act is a very strict law। Offenses जो आपके वो वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, दोज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। उनमें भी आपको बेल जनरली नहीं दी जाती है। द नेक्स्ट केस इन UAPA इज सैयद मोहम्मद जीशान अली वर्सेस स्टेट। ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें केस डायरी रेफर करके और बाकी मैटर रेफर करके कोर्ट ने बोल दिया कि बेल इस केस में नहीं दी जा सकती।
बिकॉज प्राइमा फेसाई सेटिस्फैक्शन ही कोर्ट को नहीं हुआ था कि whether they are reasonable grounds for believing that the accused that the charges against is prima facie true or not. उसमें ऊपर से अक्यूज भागे भी हुए थे और ग्रेव चार्जेस लगे थे चार्जशीट में जो चार्जेस लगे थे अक्यूज के खिलाफ अंडर सेक्शन 18, 18B एंड सेक्शन 20 ऑफ द यूएपी एक्ट, वो ग्रेव चार्जेस लगे थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ था ना, जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी जा सकता था, तो उस केस में कोर्ट ने इसमें बेल देना ज़रूरी नहीं समझा। और ध्यान रहे, स्पेशल लॉ अक्सर नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज होते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग से शुरू होते हैं, और जो भी लॉ नॉट विथस्टैंडिंग से शुरू होता है तो उस केस में उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो सीआरपीसी और बाकी के प्रोविजंस ओवरराइड कर रहा है, वो कह रहा है कि उसकी स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान में रखी जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर सारी मेरिट्स बेल के ऑर्डर पे भी सेटिस्फाई हो गई तो ये दोनों नहीं हुई जो यूएपीए एक्ट में या एनडीपीएस एक्ट में पीएमएलए में सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई। तो नो दिस दैट बेल विल नॉट बी ग्रांटेड एट ऑल। ऑलराइट, सो एडिशनल ग्राउंड्स आ जाते हैं जब स्पेशल स्टैट्यूट में आते हैं, और इसका मतलब ये भी मैं समझ लीजिएगा कि यही दोनों ग्राउंड्स हैं और बाकी ग्राउंड्स नहीं हैं तो बेल दी जा सकती है। वो सारे जनरल ग्राउंड्स जो मेरिट ऑफ द मैटर कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए। ये भले ही हो कि प्राइमा फेसी कि कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड नहीं लगते कि the accused is involved in the offense or he will not commit another offense under UAPA Act or any further offense of which he is alleged. But let us suppose the material placed before the court proves to the judge that accused might tamper with evidence or might influence investigation, तो उस केस में नहीं देगा बेल। ध्यान रखिएगा, जनरल जितने भी पैरामीटर्स हैं फॉर ग्रांट ऑफ बेल, दैट those have to be satisfied, then the special parameters will also have to be satisfied. स्पेशल पैरामीटर्स जो सारी एक्ट में फॉल करते हैं, यूएपीए हो गए, आपके एनडीपीएस हो गया, आपका पीएमएलए के केस हो गए, तो इसमें आपको सेटिस्फाई स्पेशल कंसिडरेशंस को अगर सेटिस्फाई नहीं किया योर बेल विल बी रिजेक्टेड। तो पीएमएलए पे अब आता हूँ। तो रोहित टंडन वर्सेस डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट 10 नवंबर 2017 को एक केस हुआ था, और इसमें एक बात बोली थी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस कंस्टिट्यूट अ क्लास अपार्ट, और उनके लिए डिफरेंट अप्रोच होती है कोर्ट की। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैविंग डीप रूटेड कंस्पिरेसीज एंड इन्वॉल्विंग ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक funds needs to be viewed seriously and considered as grave offenses affecting economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country. तो ऐसे केस में इनको बहुत ग्रेव ऑफेंस माना जाता है। और सेक्शन 45 क्या कहते हैं, और 45A कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है एडिशनल, जिनके बेसिस पे आपको बेल ग्रांट करनी होती है, तो वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब एक थोड़ा ट्रिविया के लिए आपको बता देता हूँ कि निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 45 के सब सेक्शन 1 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, जिसमें 2 इम्पोजिशन लगाई गई थी। पहली ये थी कि फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर of more than 3 years under Part A of the schedule of the PMLA, if it's involved, then first of all you have to give the opportunity to public prosecutor, and second, that if the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and he is not likely to commit an offence while on bail. तो इसको स्ट्रक डाउन कर दी, इन 2 कंडीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्या कहते हैं, सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए एक्ट में, ये बोल के कि इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। तो पीएमएलए तो खैर मैं नहीं पढ़ा रहा आप लोग को, लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ कि जब भी कोई स्टैट्यूट स्ट्रक डाउन, जब भी कोई प्रोविजन स्ट्रक डाउन हो जाता है ना, तो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में खास तौर से। तो एक बात बहुत अजीब है जो इस जजमेंट में, कि यूएपीए में भी ऐसे ग्राउंड्स हैं, एनडीपीएस एक्ट में भी ऐसे ग्राउंड है, बहुत सारी स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं जिसमें भी ऐसे ग्राउंड हैं, पर उनको अपहेल्ड किया गया है
इसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑड। दूसरा, अब देखिए, अब स्ट्रक डाउन हुआ, अब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19/4/2018 से सेक्शन 45(1) जो स्ट्रक डाउन किया गया था उसको अमेंड कर दिया, और जो पोजीशन है वो वापस लेट 65 to 70% रिस्टोर हो गई जो पहले थी। अब इसमें हाई कोर्ट्स के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि 45(1) की जो पुरानी कंडीशन थी वो जिंदा है या मर गई, क्योंकि जब कोर्ट कोई लॉ स्ट्रक डाउन करता है तो वो रूट से चला जाता है, और जो अमेंडमेंट हुआ है वो रीड करता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल शैल मीन टू ऑलवेज बी मेंट टू ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजिबल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। साथ में एक और चीज़ जो डिलीट की गई है, जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट ने डिलीट की है, वो है punishable for a term of imprisonment for more than 3 years in the Part A of the schedule। तो by the way of amendment जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, उससे ये दिखता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली वांट्स, द पार्लियामेंट एक्चुअली वांट्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन दैट वाज देयर, बट इट डायरेक्टली डिडंट वांटेड टू कन्फ्रंट द कोर्ट। वो कोर्ट से सीधा कन्फ्रंट्रेशन भी नहीं जाती थी इस पॉइंट पे, तो उसने उन मेजर पॉइंट्स को नहीं छुआ जिनके बेसिस पे स्ट्रक डाउन किया था, लेकिन बेसिकली बेस ऑफ द जिस बेसिस पे इंटरप्रिटेशन किया था उस बेस को रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट, सॉरी पार्लियामेंट ने उस बेस को रिमूव कर दिया, और बेस को रिमूव करने का इफेक्ट ये किया कि जो पुरानी पोजीशन थी एक तरीके से फिर रिस्टोर कर दी। ये SC/ST एक्ट में भी किया था, बट वो अमेंडमेंट अपहेल्ड किया गया था। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज बेल टू जुवेनाइल्स। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो स्पेशल लॉ है ये भी, पर इसमें जुवेनाइल्स के लिए बेल का प्रोविजन जो है वो बहुत वाइड है। अब जुवेनाइल को किन ग्राउंड्स पे बेल पे रिलीज किया जाता है? जनरली ही हैज टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अनलेस द कोर्ट हैज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव that his release will bring him to the association of some known criminal or will expose him to a moral, physical or psychological danger, or his release would defeat the end of the justice। So last clause बहुत वाइड है। therefore जब भी कोर्ट रिजेक्ट करेगा जुवेनाइल की बेल एप्लीकेशन जिस पे हीनियस ऑफेंस का या सीरियस ऑफेंस का चार्ज है, तो ऑर्डर को ये दिखाना होगा कि ग्रांट ऑफ बेल उसने जुवेनाइल अक्यूज्ड की इसलिए रिफ्यूज की है क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है दैट इफ उसको बेल दी तो वो वापस किसी क्रिमिनल गैंग में हो जाएगा, और देयर इज सम मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर टू हिम, और देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ एंड ऑफ जस्टिस बीइंग डिफीटेड। हो सकता है जस्टिस के एंड जो पर्पस ऑफ ट्रायल है वही डिफीट हो जाए। तो ये जो ऑर्डर ऑफ बेल है इसको ये दिखाना होगा, ठीक है। और जनरली द ग्राउंड्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज वेरी वाइड अनलेस देयर आर हीनियस ऑफेंसेस दैट हैज बीन एलेज्ड। और जुवेनाइल को कभी जेल में नहीं रखा जाता, उसको रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है। सो आई हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम and juvenile justice system, and I'll provide you with the case law and the differences that are between the criminal law, the ordinary criminal law and the juvenile justice system. But I just wanted to bring home a point that bail to the juvenile is generally granted, हमेशा उसको बेल मिल जाती है, और बहुत ही वाइड ग्राउंड है ये। ऐसा कोई भी लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट, आई थिंक ऑफ आफ्टर द निर्भया रेप केस, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाज अमेंडेड, एंड इन हीनियस ऑफेंसेस it was actually held that it was actually legislated by the parliament that in heinous offences the bail cannot be generally granted, the bail can be granted, बेल का क्लॉज अभी भी बहुत वाइड है एज कम्पेयर टू एनी अदर लॉ, लेकिन रिफ्यूज़ की जा सकती है 3 सिचुएशन में। क्या है वो सिचुएशन? लाइक्लीहुड ऑफ द जुवेनाइल ऑन
on release being likely to be brought into association with any known criminal, or in consequence of being released, exposure to of the juvenile to moral, physical, or psychological danger. फिर आगे it can be equally be refused on the ground that releasing a juvenile, that includes a juvenile below 16 years also, that it would defeat the ends of justice. In the opinion of the court, the words defeating the ends of justice employed under section employed in the proviso to section 12 of the Juvenile Justice Act postulates as one of the relevant considerations, and for that the nature and gravity of the offense is not the only considerations, but there are also other considerations that the court has to see: tampering evidence, requesting investigation, threatening the complainant, etc., etc. All the other factors has to be considered along with these. तो जो हीनियस ऑफेंसेस की केस में, और if the accused जो है is let's suppose above 16 years, तो उसके केस में थोड़ा बेल का जो प्रोविजन है थोड़ा लिमिट हो जाता है उसके, as compared to Juvenile Justice Act, obviously not as compared to the other acts. Juvenile Justice में जनरली बेल ग्रांट ही की जाती है, क्या कहते हैं उसको, ज़बरदस्ती कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता और जेल की कस्टडी तो दी ही नहीं जाती है. दे आर गिवन रादर कस्टडी अंडर रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूट, जो भी हो वो. तो किन किन ग्राउंड पे उनको दी क्या कहते हैं रिजेक्ट की जा सकती है. The bail granted can be denied only on the ground where there is a likelihood of juvenile on being released is brought in association with any known criminal, or in consequence of being released can be exposed to moral, physical or psychological danger. और एक क्लॉज जो डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस है वो बिलो 16 ईयर्स वालों पे भी अप्लाई करता है एज इट अप्लाइज टू अबव 16 ईयर्स. Alright, so it's a very wide clause. Below defeating end of justice of a very wide clause. पर इसमें अब जुवेनाइल जस्टिस की नुआंसेस में जाना होगा, एंड आई एक्चुअली वांट टू अवॉइड दैट. तो बेसिकली इस पे जो लीडिंग केस है वो है राजू एलियास आशीष वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है. इट्स अ वेरी लीडिंग जजमेंट. और दूसरा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड अदर्स वर्सेस राजू थ्रू द मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. ठीक है, इसमें आपको एक बहुत अच्छा definition or elaboration on the juvenile justice system or criminal justice system दिया गया है. I'll provide you that. So that was I think sufficient for today. और lecture वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया. So I'll be providing with the study notes, and I'm just trying to complete the topic of bail as fast as possible, but it's a very complex, nuanced topic. So tomorrow we'll deal with anticipatory bail, revision of bail, and several other nuances that are contained in the bail law. This will, I think, take much more time than this. So the bail will actually be divided in 5 parts, I think. So I hope that you are following the bail law, because bail law is one of the most complex provisions of law that is there. And once you understand the parameters and guidelines for the grant of bail, the bail jurisprudence becomes very easy for you. It's all about the guidelines, and then it is all about your general practice, experience, fact, and circumstances of the case. Once you know the guidelines, once you are aware of it, most of your problems are solved. Right? Then there are few situations where I have to deal with habeas corpus and bail. I think I dealt with that already when I gave you the lecture on section 167 of the CRPC. So refer to that. Section 167 की जो indefeasible right of bail है ना, you have to club that study note with the bail law that I am providing right now. तो बेल के जितने भी स्टडी नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आपको 167 के भी बेल नोट्स उसके साथ क्लब करना है, जिससे आपके पास पूरे बेल लॉ के पूरा कंप्लीशन हो जाए अलॉन्ग विद स्टडी नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स. ठीक है, सो यू विल हैव द कंप्लीट मटेरियल ऑन बेल लॉ दैट वे. ऑलराइट, सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर.